हेलो बच्चों, वेलकम टू शताब्दी क्लासेस। मैं हूं आपकी शताब्दी दीदी। मैं आप सबके लिए क्लास सेशन में ओलंपियाड के प्रिपरेशन का लिस्ट लेके आई थी। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट किस तरीके का प्रिपरेशन आपको करना जरूरी है फॉर ओलंपियाड, कितना इन डेप्थ प्रिपरेशन हर एक चैप्टर के लिए करना चाहिए फॉर स्पेसिफिकली साइंस। ओके, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आंसर्स करना चाहिए प्रिपरेशन फॉर दिस ओलंपियाड गोल दैट आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। तो उसी को कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था लास्ट सेशन में। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट इन पार्ट 2 बिकॉज आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना चाहिए हर एक चैप्टर, इसीलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने में इट विल टेक 3 days एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए लगेगा 1 day। ओके, सो बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ प्रिपेयर कीजिए। हंसी मजाक में, खेल खेल में हम पढ़ जाएंगे। ओके, एंड हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने जाना था लास्ट सेशन में। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछने वाली हूँ आज। मैं टेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को कितना कुछ याद है लास्ट सेशन में। इन केस आपने नोट्स नहीं लिया है, प्लीज फील फ्री टू विजिट माय ऐप एंड वहां से नोट डाउनलोड कीजिए, वहां से प्रिपरेशन कर लीजिए बच्चों। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑलराइट, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा था। ऑलराइट, and before I start, I want to give you a very good news, which is that courses, because of Diwali, great offers are going on for all the foundation courses. So science grade 8, grade 7 and grade 6 foundation courses that I'm giving in Shatabdi's classes, I will be taking all the classes every day. You will get live sessions, you will get study notes, you will get different kinds of materials and question answer preparation with at a very low price, which is like coming around 300 per month. That is a great price going on for Diwali and only for the first 100 students. So feel free to download the app. And also recently I have launched Olympiad Science Preparation. So don't forget to download the materials from there and feel free to join the live session. You will get live classes regularly. There are not only recorded session but also live session with me regularly you will get. Okay, and I'll make sure that you all will score great and your basics are clear. So feel free to visit the app. All the descriptions are there in the description box. Okay, links, each course link, Olympiad link, everything is there. Feel free to visit the app. All the prices given are for a entire year. Okay, so for example, if I have given the price 4999, which is a Diwali special discount going on, so that is for an entire year. So it is very at a very less price. I have brought this for all of my students. Feel free to join the app and feel free to enroll. Also, there are free study material, free videos available. Also in my YouTube channel, I will give you some free content. I will help you out thoroughly, even if you don't enroll for the session. Okay, so I'll be there with you. Don't worry. Okay, now let us revise. Okay, which of the following protozoa possesses pseudopodia? Do you remember? I told you about something called pseudopods, right? Pseudopods के help से there was an organism, specifically protozoa, जो चलते थे. What was the name of the organism? Is it paramecium? Is it amoeba? Is it giardia or is it trypanosoma? I'll give you 2 seconds to think. Yes, the answer is amoeba. So amoeba has this pseudopod जिसके हेल्प से वो चल पाती है. Okay, mixotropic nutrition is shown by entamoeba or euglena. The answer is euglena. Okay, now moving to the next chapter. Okay, unicellular fungi is penicillium, mushroom, mold, yeast. Which one among these 4 options is a unicellular? The answer would be yeast. Okay, so remember one thing, multicellular is for M, right? M for multicellular, M for mushroom, M for mold. So mushroom, mold are multicellular. Okay, penicillium is also multicellular. Okay, but yeast is the only fungi which is unicellular in out of these 4 options. Okay, so yeast is a unicellular fungi. All right, Giladium is an example of brown algae, blue-green algae, green algae or red algae. You remember I gave you some examples of
different types of algae based on the pigmentation they have in their body. Okay, you remember that? In case you have forgot, feel free to visit the app and download the study material, and please remember these names. There are certain things in science you need to memorize, certain things like some scientific names, some examples. You need to understand which family they belong to. All right, so the right answer is red algae. Okay, so we had a good quick revision. Now let's go ahead. So before I start with the next part of microorganism, I'm going to ask you a question. Have you ever seen anybody preparing curd using, some kind of powder or a spoonful of curd using milk? Have you ever seen that? Have you ever tried yourself? Yeah, so it is a very ancient trick that we do. Like if you have a bowl of milk and you add just a spoonful of curd into that and you keep it overnight or keep it for a couple of hours, you will see that the entire bowl of milk becomes curd. Have you ever wondered why does this happen? So the reason is there's a bacteria known as lactobacillus that converts milk to curd by producing lactic acid and reducing the pH of the milk. Okay, so these bacteria convert the lactose in lactic acid, which imparts the sour taste in the curd. Okay, so acids are sour in taste, we know, right? So because of this presence of lactic acid, curd is little sour in taste. Okay, so this bacteria, which is known as lactobacillus, remember the name. Okay, lactobacillus that converts milk to curd by producing lactic acid. Okay, because of the presence of this particular bacteria, okay, milk is getting converted into curd. Okay, now yesterday in the last session I have discussed that there are a lot of diseases that might happen because of the microorganism. A lot of food spoilage happens because of microorganism, but are they always harmful? Is there any good effects of the microorganism in our environment, in our lives? Yes, a lot. Okay, so let's discuss them. I just discussed about making curd and cheese as well. Okay, so bacteria are used in preparation of curd and cheese. Okay, as I already said, the bacteria known as lactobacillus, when it is added, little curd is added to milk, lactobacillus multiplies and converts the milk into curd. Okay, so the production of cheese also involves use of bacteria like lactobacillus and streptococcus. Okay, so these milk, from the milk, the curd and the cheese preparation happens because of the presence of bacteria, specifically lactobacillus. So milk is related to lactose, so lactobacillus, remember this name. Okay, all right. So this is how it helps in one way. Now let us see if there is any other way. Yeah, in making bread. This is very interesting. How does it help in making bread? So, we all like our bread and cakes fluffy, right? Now, how does this, fluffy thing happens? So yeast, remember yeast? Yeast plays, it is a unicellular organism. So it plays an important role in preparing bread. So what does yeast do? Yeast क्या करता है? Yeast को खाने के लिए चाहिए sugar. फूड में से उसको शुगर चाहिए. सो इन दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर क्या होता है? एल्कोहल फॉर्म होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स अप द कार्बन डाइऑक्साइड. फूड से शुगर एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में वो एल्कोहल फॉर्म करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन. ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर with the help of yeast or any other microorganism, जिससे कि अल्कोहल फॉर्म होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं. तो ये जो बबल्स निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये बबल्स क्या करता है? ये डो को राइज करने में हेल्प करता है. Okay, so when the dough is baked, more bubbles of gas are formed due to heat. As the gas escapes, the bread rises and become soft and fluffy. Okay, so bread बनाने में भी हेल्प कर रहा है, कर्ड बनाने में, चीज बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं. ओके, नाउ इडली, डोसा एंड ढोकला, दैट इज आल्सो द सेम थिंग, फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की वजह से इडली, डोसा
जो भी फ्लफी बनाने का कोशिश किया जा रहा है, वो जो बैटर को यूज किया जा रहा है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प कर रहा है. ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दैट आई ऑलरेडी सेड कि क्या हो रहा है. फर्मेंटेशन जो प्रोसेस मैंने बोला था, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन क्या हो रहा है, ईस्ट को शुगर चाहिए फूड में से, एंड शुगर को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में वो व्हाट इज इट डूइंग, इट इज क्रिएटिंग अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर ईस्ट को एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाया जाए एकदम पूरी तरीके से, ऑक्सीजन बैन करके उस प्रोसेस में अगर ईस्ट को रखा जाए, तो इट विल डू एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इट विल क्रिएट, इट विल एक्सट्रैक्ट द शुगर, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना रेस्पिरेशन करने का ट्राई करेगा. इस प्रोसेस में अल्कोहल क्रिएट होता है. ओके, सो वन मेन डिफरेंस बिटवीन, सो सी, wine is prepared by fermentation of sugar in grapes, and beer is prepared fermentation of sugar in germinating barley. Okay, so grapes and barley को use करके ये अल्कोहलिक ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, जो कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है शुगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए. एंड ये शुगर एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में रिएक्शन के एंड में क्या जनरेट होता है, वाइन और बियर, और एंड उसका बाय प्रोडक्ट एक और होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ दे आल्सो हेल्प इन फूड इंडस्ट्री. सम सीवीड्स आर यूज्ड as food in China and Japan. Some substances that obtained from algae. algae के बारे में हमने पढ़ा था, याद है? algae किस चीज में यूज होता है? अगर algae के बारे में आप भूल गए हो, प्लीज गो टू माय विजिट माय फर्स्ट वीडियो, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, उसमें प्लीज गो एंड विजिट दैट. So some substances obtained from algae are used to thicken food such as ice cream, jellies. Algae are important as food for animal also, जैसे कि snails. Okay, तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में algae can be a very important source of food for human also. Now vinegar preparation में भी microorganism help करता है. कैसे करता है? Vinegar is produced by the action of bacteria. So bacteria is used for production of tea, coffee and cocoa also. The mixture rises and becomes sour. So dhokla, a popular food in Gujarat, dhokla है ना, it requires yeast to be added in the mixture. आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे डो वाले चीजें जो बनता है ना, जो फ्लफी होता है, उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है टू मेक इट सॉफ्ट एंड फ्लफी. क्यों सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया, जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प, प्रेजेंस ऑफ ईस्ट. ओके, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, नॉट बैक्टीरिया इन दिस केस. तो ये ईस्ट क्या करता है? ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं वो डो को राइज करने में हेल्प करता है. सो फ्लफी बनता है ऑटोमेटिकली. तो ये याद रखना. ऑलराइट, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमें बहुत जरूरत होती है. तो बैक्टीरिया एंड फंगाई को यूज करके ये सारे मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है. ओके, ये मेडिसिन क्या करता है? स्टॉप कर देता है फॉर ग्रोथ ऑफ एनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन comes from a species of mold which is known as penicillium. Okay, so penicillium से बहुत सारे different kinds of infections, actually infectious diseases को स्टॉप कर सकते हैं. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आप लोगों ने सुना होगा. हमें जब भी फीवर आता है हम इस टाइप के दवाएं खाते हैं, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन तो आप लोगों ने सब सुना ही होगा ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन. ये हेवी कॉफ कोल्ड के लिए यूज होता है. सो ये सारे जो एंटीबायोटिक्स है, ये बनता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल सम डिजीजेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बड़ा रोल है. मेकिंग ऑफ वैक्सीन, ये तो हम सबको पता है. वैक्सीन 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 बहुत सुना है. वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन बेसिकली जिस वायरस के वजह से आपको वो बीमारी हो रही है, जो भी बीमारी किसी को हो रही है, सपोज ये जो फ्लू वैक्सीन का ही मान लो. फ्लू जो होता है हम लोगों को रेगुलर, जो कोल्ड फ्लू होता है, फ्लू का एक वैक्सीन, हमें फ्लू शॉट आप सबने सुना होगा. तो क्या होता है, ये वैक्सीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जो वायरस है उसी वायरस का वीकेंड या डेड जो वर्जन है उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. इंजेक्ट करने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है.
तो हमारे बॉडी को उसका एंटीबॉडी का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो पता चल गया कि इसके साथ लड़ने के लिए हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इन फ्यूचर अगर वो वायरस हमें अटैक करती है, जो कि which is not a dead or weakened version, which is a very active or strong version, तो हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता है एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस करना है, तो इट विल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस। तो क्या होता है कि हमारा उस डिजीज का जो इफेक्ट होता है वो काफी कम हो जाता है। ओके, सो ये जो कोविड का हमने वैक्सीन लिया है, ये एक्चुअली हम अपने बॉडी के अंदर कोविड के वायरस ही डाल रहे हैं, विच इज अ डेड और अ वीकेंड वर्जन। मतलब वो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इजीली फाइट कर सकती है। तो जब हमने फाइट करना सीख लिया, तो हमने सीख लिया कि जब इससे भी स्ट्रॉन्ग कोई आएगा तो उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करेंगे, है ना। सो सिंपल लैंग्वेज में, वैक्सीन्स आर द डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ दोज माइक्रोब्स। ओके, सो ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये जो वैक्सीन है, ये हमें डिजीजेस से प्रोटेक्शन दे रही है, एंड इसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड के जैसा यूज हो रहा है ना। ऑब्टेनिंग वाइटामिन्स, मेकिंग इंसुलिन, इसमें भी बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज्ड फॉर मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, आप सबने सुना होगा। इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स इन डायबिटिक पेशेंट्स, इंसुलिन यूज होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ओके, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है अलग अलग तरीके से। तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या करती है, एटमोस्फियरिक जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके इसको कन्वर्ट करती है इनटू नाइट्रेट्स। ओके, सो ये जो नाइट्रोजन, ये एक सिंथेसिस हो रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन सिंथेसिस होता क्या है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें हमारे जो प्लांट्स को अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर हम दे पा रहे हैं जो कि नाइट्रोजन रिच है। ओके, तो ये पॉसिबल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। तो फर्टिलाइजर प्रिपेयर करने के लिए भी इनका बहुत एक योगदान है। ओके, नाउ क्लीनिंग एनवायरनमेंट। अगर कोई भी आपने देखा होगा कि कोई पेड़ पौधा या कोई भी जानवर अगर डेड हो जाता है, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो सड़ने लगती है एंड वो मिट्टी के साथ मिल जाती है। ये पॉसिबल कैसे होता है? ये पॉसिबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ के वजह से। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जो डेड बॉडीज है उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म कर देते हैं, जो कि मिट्टी के साथ इजीली मिक्स हो जाता है एंड बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर भी बन जाता है। तो ये क्या करता है, ओरिजिनली जिस चीज से हमारी बॉडी बनी है उस चीज में ही ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी को आफ्टर डेथ मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। अदरवाइज क्या होता, सारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल ऐसे ही पड़े रहते हैं एंड उसको किसी भी तरीके से, इससे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बुरा इफेक्ट होता। ओके, सीवेज में भी यूज होता है, सीवेज क्लीन करने के लिए बैक्टीरिया यूज होता है। ओके, बायोगैस प्रोडक्शन में भी यूज होता है। बायोगैस प्रोडक्शन में विलेजेस में एनिमल वेस्ट, लीफी वेस्ट, ओके, इससे क्या होता है, डिकम्पोज करके बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मीथेन। तो ये मीथेन एक फ्यूल के जैसे यूज होता है। बायोगैस अभी एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको यूज करके हम बहुत सारा फ्यूल जनरेट कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट रिसोर्स। ओके, नाउ अभी तो हो गया कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प कर रही है, लेकिन हमने लास्ट सेशन में ही जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे डिजीजेस होती है। तो हम पहले जानेंगे प्लांट डिजीजेस, देन एनिमल एंड देन ह्यूमन में क्या क्या होता है। सो प्लांट डिजीज क्या होता है, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेमोराइज भी करना पड़ेगा। बट हाँ, देर आर लिंक्स टू रिमेम्बर दैट। जैसे कि साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर क्या होता है, ये कुछ पेड़ में होता है साइट्रस कैंकर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया। ओके, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर द नेम, जस्ट इतना याद रखो कि बैक्टीरिया है या वायरस है, फंगाई, किसकी वजह से हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, वाटर। इससे क्या होता है कि प्लांट्स के लीव्स कम हो जाते हैं। ओके, एंड स्टेम एंड फ्रूट पे भी इफेक्ट होता है। तो एक उनके ऊपर एक देखना कॉपरिश कलर का, कॉपर का जो कलर है उस कलर का एक लेयर बन जाता है। इसको साइट्रस कैंकर बोलते हैं। जनरली साइट्रस फ्रूट जैसे कि जो थोड़े सार फ्रूट होते हैं जैसे कि नींबू,
ओके, जैसे कि नींबू के पेड़, उसमें ये होता है। पोटैटो ब्लाइट डिजीज, ये क्या होता है, ब्राउन, इससे क्या होता है कि ब्राउन लेसेंस ऑन सरफेस ऑफ ट्यूबर होता है। ओके, ये इसको इसको प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, फंगिसाइड्स यूज किया जाता है, क्योंकि ये फंगाई की वजह से पोटैटो में एक डिजीज होता है। तो ये हो गया साइट्रस कैंकर एंड पोटैटो ब्लाइट डिजीज जो है ये होता है प्लांट्स में। नाउ लेट्स सी एनिमल्स में क्या होता है माइक्रोब्स की प्रेजेंस की वजह से। एंथ्रैक्स करके एक होता है, ये ह्यूमन में भी हो सकता है एंथ्रैक्स। ओके, एंथ्रैक्स होता है जनरली हमने देखा है काउज में, बुल्स में होता है। इससे क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो इसके लिए एक वैक्सीन है, एंथ्रैक्स वैक्सीन, जो कि हेल्प कर सकता है। फूट एंड माउथ डिजीज, ये होता है एक वायरस के वजह से। इसमें क्या होता है, फीवर, ब्लिस्टर्स इन माउथ, वेट लॉस्ट, ओके, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ये होता है। इसके लिए भी एक वैक्सीन है। तो ये सारे एनिमल्स के डिजीजेस हैं, बट ह्यूमन में भी ये स्प्रेड होता है, बट वेरी लेस। नाउ ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन को किस किस तरीके के डिजीजेस होते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, व्हाटएवर इट इज। ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस किसकी वजह से होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बैक्टीरिया है या वायरस है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, बहुत होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया के वजह से, स्प्रेड होता है थ्रू एयर। एंड इससे क्या होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, आप लोगों ने पहले ही सुना होगा, जैसे कि बहुत कफ, हैवी कफ हो जाता है, ब्लड निकलता है, लॉस ऑफ वेट होता है, ब्रेथलेसनेस होता है। बट यस, इसके लिए एक वैक्सीन है जो कि बीसीजी वैक्सीन बोला जाता है। कोलेरा, कोलेरा भी विब्रियो कोलेरी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। इसको याद रखना इजी है, कोलेरा कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ये कैसे स्प्रेड होता है, फ्लाइज से। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि खाने को ओपन में, खुला में मत रखो, हमेशा ढका हुआ रखो, क्योंकि ये फ्लाइज कैरी करते हैं इस टाइप के बैक्टीरियाज को। सो व्हाट, इसके वजह से क्या होता है, कॉलेरा आप सबको पता होगा कि डायरिया होता है, बहुत डिसेंट्री हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसके लिए डेफिनेटली ओआरएस खाना जरूरी है। ओआरएस आप सबको पता होगा, इज एंटी कोलेरा वैक्सीन ऑल्सो, मोस्टली ओआरएस से दिस इज ट्रीटेबल। कॉमन कोल्ड, हमें जो सर्दी खांसी होती है रेगुलरली, वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से। वायरस है ये, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से क्या होता है, रनी नोज, स्नीजिंग। अगर हम आइसोलेट करते हैं अपने आप को, थोड़ा गर्म पानी वगैरह पीते हैं, वी ऑल नो व्हाट इज द रेमेडी फॉर कॉमन कोल्ड, लाइक दूध हल्दी के साथ पियो एंड ऑल दोस थिंग, हमारे पुरखों से चली आ रही है, सो वी ऑल नो। रेबीज, रेबीज होता है एनिमल्स में, एनिमल बाइट की वजह से होता है। ओके, स्पेशली डॉग्स। सो ये भी एक वायरस के वजह से होता है, विच इज रेबैडो विरिडे। ओके, सो देखो नाम्स बहुत रिलेटेड है, तो आपको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो रेबीज की वजह से फीवर होता है, हेलुसिनेशन होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। एंटी रेबीज वैक्सीन है उसके लिए, डेफिनेटली। नाउ एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री होता है, ये भी खाने के थ्रू ही, मतलब खाना अगर ओपन है बहुत दिनों से, खा वाटर अगर क्लियर नहीं है, तो उसमें इससे होता है। अब अगर कहीं का खराब पानी पी लो तो देखना आपको बहुत डिसेंट्री टाइप का हो जाता है, विच इज जनरली बिकॉज ऑफ दिस एमीबिक डिसेंट्री। ओके, ब्लडी स्टूल भी निकलता है। ओके, सो प्रॉपर सैनिटेशन हैज टू बी फॉलोड। अगर चारों तरफ साफ सफाई रखा जाए, आपके घर के चारों तरफ, आपके घर के अंदर, आप खाने को अच्छे से ढक के प्रॉपरली रखो, रेफ्रिजरेट करो, तो फिर ये सारी चीजें नहीं होती है। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का खाना ऐसे बहुत ही अवॉइड करना चाहिए, जितना अवॉइड किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज वो ठीक से प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा जाता है। पानी, बाहर का पानी बहुत ही ध्यान से पीना चाहिए, इफ इट इज बॉइल्ड वाटर, और you know if it is a tap water, we have to make sure that it is clean, okay, and drinkable. Now coming to malaria, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, this happens because of a protozoa known as plasmodium, and ये स्प्रेड होता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से। इसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, वेरी हाई फीवर होता है। ओके, बट यस देयर आर क्विनिन और क्लोरोक्विनिन जिसके हेल्प से इसका सिम्टम्स रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो डिजीजेस है, मोस्टली सारे डिजीजेस का कुछ ना कुछ देयर इज अ वैक्सीन, और there is a antibiotic drug, or there is anything any kind of medication available, but yes, there is something for which there is no medication available, abhi tak kuch nahi mila hai, which is
HIV happens because of a virus, so that सारे चीजों के लिए you won't get these kind of vaccines available always, although scientists are trying to get a lot of they are doing a lot of researches to work on these kind of diseases which are not curable. Okay, but let's see what happens in the future. But most the good news is that कि सारे mostly bacterial and viral diseases का vaccine या antibiotic available है. But yes, we need to maintain hygiene, we need to maintain sanitation in our nearby areas, in our home. Okay, जिससे कि ये सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शंस कम होंगे. ओके, ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे. हम जानेंगे कि डिफरेंट फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, खाने को किस तरीके से प्रिजर्व करने से वो ज्यादा दिन तक उसका लॉन्जेबिलिटी होता है, एंड उसमें माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प कर सकती है. Also we learn about nitrogen cycle, which is very important, very complicated, but बहुत ही easy तरीके से आपको समझाने वाली हूँ. And in the next session, I will discuss the question answers which are related to Olympiad level. Okay? So बच्चों, पढ़ाई करो, शताब्दी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाके फ्री सेशंस अवेल करो. वहां पे मैं सारे स्टडी मटेरियल्स भी ऐड करने वाली हूँ ताकि आपको हेल्प हो वो सारे नोट्स से जो मैं बना रही हूँ. एंड फील फ्री टू एनरोल फॉर द कोर्सेस इज वेल. सो बाय बाय फॉर टुडे, बट स्टडी वेल एंड कंसंट्रेशन रख के पढ़ाई करो. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.